اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات سامعین و ناظرین، یہ قرآن فہمی کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، تو قرآن سمجھنے کے لیے ہمیں عربی سمجھنا ضروری ہے سب سے پہلے، اور جس طرح ہر لینگویج کے کچھ قواعد ہوتے ہیں اسی طرح عربک کے بھی کچھ قواعد ہیں، تو پہلے ہمیں وہ سمجھنے ہیں، پہلے ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے تاکہ ہمیں بعد میں اسے سیکھنا اور پڑھنا آسان ہو۔ تو یہ سب سے پہلے ہم شروع کریں گے ضمائر سے۔ کہ ضمائر کیا ہے؟ ضمائر یعنی پرونونس، انگلش میں بولتے ہیں پرونونس، یہ ہے 14، یہ عربک لینگویج میں 14 ہیں۔ یہ پرونونس ہیں جو نونس کی جگہ پر، یعنی ضمائر ہیں جو اسم کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے انا، حمزہ زبر آ، نون الف زبر نا، انا۔ اس کا مطلب ہے میں، یعنی کہ میں خود۔ یہ آتا ہے واحد متکلم کے لیے، یعنی خود کے لیے، واحد متکلم کے لیے یعنی خود کے لیے، اپنے کے لیے۔ اچھا، اس کے ساتھ لکھا ہے یا، یہ انا کی جگہ یا بھی آئے گا۔ جب انا آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا میں، اور جب یا آئے گا اس کا مطلب ہوگا میرا، یعنی جیسے میرا پین، میرا مارکر، میرے کپڑے وغیرہ وغیرہ۔ جب یہ آئے گا اس کے ساتھ ہی جو ایسے ڈیش لگی ہوئی، اس کا مطلب کہ یہ ہمیشہ کسی لفظ کے ساتھ ملا ہوا ہوگا، یہ اکیلا نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ پیچھے سے کوئی لفظ ہوگا جو اس کے ساتھ ہی ملا ہوا ہوگا۔ تو انا مینس میں اور یا مینس میرا، جیسے آئی مینس میں اور مائی مینس میرا، یا مینس مائی، اور انگلش میں لکھا جاتا ہے آئی انا کی جگہ۔ دوسرا ہے نحنو۔ دوسرا ہے نحنو، نحنو مینس ہم، اور نا مینس ہمارا، یہ آتا ہے جمع متکلم کے لیے۔ یہ ہمیشہ یا کی طرح کسی لفظ کے ساتھ ملا ہوا ہوگا، تو نحنو مینس ہم اور نا مینس ہمارا۔ جیسے کتابنا، ہماری کتابیں، ہاتفنا، ہمارا موبائل وغیرہ وغیرہ۔ اب تیسرا ہے انت اور کا، کاف زبر کا، انت اور کا۔ اسی طرح انت مینس تم اور کا مینس تمہارا، جیسے میرا، ہمارا، تمہارا، کا مینس تمہارا۔ اسی طرح یہ بھی ہمیشہ، یہ جو آگے لکھے گئے ہیں ہمیشہ کسی لفظ کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے، یہ الگ نہیں ہوں گے۔ تو انت مینس تم اور کا مینس تمہارا، یہ آتا ہے واحد مذکر حاضر کے لیے، انگلش میں بولتے ہیں یو۔ واحد مذکر، ایک واحد ہونا چاہیے، یعنی کوئی ایک ہی ہونا چاہیے، اور دوسرا ہونا بھی مذکر چاہیے، یعنی میل ہونا چاہیے، اور ہونا بھی حاضر چاہیے، یعنی مخاطب ہونا چاہیے، ہمارے سامنے ہونا چاہیے جس سے ہم بات کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح انتما، یا پھر آئے گا کما۔ انتما یہ آتا ہے تسنیہ کے لیے، جب بھی کوئی دو ہوں گے سامنے جس سے بات کی جا رہی ہے، وہ اگر کوئی دو ہوں تو ان کے لیے آئے گا انتما یا کما۔ انتما تم دونوں کا، اسی طرح کما ہوگا
अंतुमा तुम दो और कुमा तुम दोनों का, मतलब तस्नीय यानी डबल, तस्नीय मीन्स डबल, मुजक्कर मोनस। अच्छा ये जो तस्नीय वाला है इसमें मुजक्कर और मोनस दोनों के लिए सेम है, इसलिए यहाँ पे लिखा मुजक्कर मोनस दोनों के लिए होगा, और हाजिर यानी कि जिससे हम बात करें वो सामने होना चाहिए। तो इंग्लिश में इसे भी यू बोलते हैं, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए आता है। तीसरा आ गया जमा वाला अंतुम या फिर कुम, तुम सब। अंतुम मीन्स तुम सब, और कुम होगा यहाँ पे लिखा नहीं है तो कुम होगा उसी की तरह तुम सब का। इस तरह तुम तुम्हारा और तुम सब यानी तुम सब का, ये आएगा जमा के लिए जब 3 या 3 से ज्यादा होंगे। अच्छा यहाँ पे एक बात और याद रखनी है कि बाकी लैंग्वेजेस में सिर्फ सिंगल होता है, सिंगुलर, और सिंगुलर से दूसरे नहीं, जैसे 2 होते हैं तो वो जमा हो जाते हैं, लेकिन अराबिक लैंग्वेज में जब 2 होते हैं तो वो जमा नहीं पड़े जाते बल्कि उसे डबल कहा जाता है, उसे तस्नीय कहा जाता है। जब 3 कोई चीज होती है तो उसे जाकर जमा बोला जाता है। तो अंतुम या कुम तुम सब, तो कुम मीन्स होगा तुम सब का, ये है मुजक्कर के लिए। अंता अंतुमा अंतुम ये किसके लिए, मुजक्कर के लिए, लेकिन अंतुमा जो है वो मुजक्कर मोनस के लिए, जब भी तस्नीय आएगा वो सेम होगा। अब आएंगे मोनस के लिए, अंती, अंती मुजक्कर के लिए क्या था अंता, मोनस के लिए क्या होगा अंती या फिर की। यहाँ पे क्या था का, यहाँ पे क्या होगा की, काफ जेर की। तुम, इसका मतलब भी है तुम या तुम्हारा, यहाँ पे लिखा नहीं लेकिन इसका आगे की का क्या मतलब हो तुम्हारा। वाहिद ये भी एक के लिए होगा, और ये होगा मोनस क्योंकि अंती है, और ये हाजिर के लिए, वाहिद मोनस हाजिर का सीगा, इसे भी इंग्लिश में यू बोलेंगे, और ये फीमेल के लिए होगा। इसी तरह आगे नीचे अंतुमा, ये सेम है उसी की तरह अंतुमा कुमा, अंतुमा कुमा तुम दो, इंग्लिश में इसे भी यू लिखा जाएगा, फीमेल और मेल। इंग्लिश में जो सामने होता है वो चाहे 1 हो 2 हो 3 हो, मुजक्कर हो मोनस हो मेल हो फीमेल, सब के लिए यू लिखा जाता है, लेकिन अराबिक में सब के लिए अलग अलग रूल है। तो ये टोटल 6 सीगे बनते हैं, 3 मुजक्कर के और 3 मोनस के। आगे चलते हैं, मोनस का हमारा जमा करा गया वो यहाँ पे है, अंतुन्ना या फिर दूसरा होगा कुन्ना। अंतुन्ना मीन्स तुम सब, लेकिन ये मोनस के लिए है। इसी तरह मुजक्कर के लिए क्या था अंतुम, मुजक्कर के लिए था अंतुम, लेकिन यहाँ मोनस के लिए क्या है अंतुन्ना, या फिर आगे क्या होगा कुन्ना। ये हमेशा किसी वर्ड के साथ मिला हुआ होगा, आगे जो भी आ रहे हैं सब किसी वर्ड के साथ पीछे से मिले हुए होंगे। तो अंतुन्ना मीन्स तुम सब, लेकिन ये मोनस के लिए है यानी तुम सब औरतें वगैरह, जैसे अंतुम तुम सब मर्द, और अंतुन्ना तुम सब औरतें, कुन्ना तुम सब का यानी तुम सब औरतों का, यानी तुम सब औरतों का कोई काम, या तुम सब औरतों की किताबें वगैरह वगैरह। जमा, ये जमा के लिए है, लेकिन ये है किसके लिए मोनस, जमा मोनस हाजिर, तो इसे भी इंग्लिश में यू कहा जाएगा, लेकिन ये फीमेल के लिए होगा, एफ मीन्स फीमेल। ये हमारे हाजिर के सीगे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं हमें गायब के सीगों पर। तो गायब में जब कोई सिंगल होगा तो उसे क्या बोला जाएगा हुआ, और दूसरा इसके साथ क्या मिलेगा हु, हापेश हु, और ये कभी हाजिर ही भी होगा, पेश और जेर से होगा, पेश और जेर से होगा। वो इसे बोला जाएगा वो, हुआ मीन्स वो, और हु मीन्स उसका, या ही मीन्स उसका। ये कभी हु आएगा कभी ही आएगा, ये पीछे जो इसके साथ लफ्ज मिला हुआ होगा उसके हिसाब से होगा, कब हु आएगा और कब ही आएगा। वाहिद मुजक्कर गायब, ये एक तो वाहिद होना चाहिए और वो मुजक्कर, और तीसरे गायब होना चाहिए, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है। हिया या हा, ये हा अलिफ जबर हा, ये हमेशा जबर से अगर के साथ इसके अलिफ मिला हो तो अलिफ हमेशा जबर को ही कबूल करता है, अलिफ पेश और जेर को कबूल नहीं करता। तो ये हमेशा इस तरह से लिखा जाएगा, हा जबर हा, और पीछे से किसी लफ्ज के साथ मिला हुआ होगा। तो हिया मीन्स वो और हा मीन्स उसका, लेकिन ये मोनस के लिए है।
वाहिद मुअन्नस गायब। अच्छा, जो पहले हमने पढ़ा था इसे इंग्लिश में या तो हम ही लिखते हैं या इट, और ही और हा को या तो शी लिखते हैं या इट। शी को ही या हा को क्या लिखेंगे, ही या को शी या इट। हुमा, उसके बाद आ गया तस्निया वाला हुमा, और ये आगे वाला भी सेम लिखा जाएगा हुमा। अब ये इससे आगे ऐसे आ रहे हैं, ये तीन जो आगे और पीछे सेम होंगे। ये तस्निया का है, वो दो, और आगे वाले हुमा का मतलब उन दोनों का, ये नहीं दोनों सेम लिखे जाएंगे। तस्निया मुजक्कर मोनस, जब भी तस्निया होगा चाहे हाजिर में हो चाहे गायब में हो, उसके अराबिक वर्ड्स सेम लिखे जाते हैं। तस्निया मुजक्कर मोनस गायब, तो इंग्लिश में इसे लिखा जाएगा दे, क्योंकि इंग्लिश में जब भी गायब में कोई भी आदमी हो कोई भी चीज हो तो उससे एक से जब ज्यादा हो तो उसे दे कहा जाएगा। तो दे ये मेल और फीमेल दोनों के लिए आएगा। और आगे हम, वो सब यानी जमा, लेकिन ये मुजक्कर के लिए, जमा मुजक्कर गायब, तो इसे भी इंग्लिश में दे लिखा जाएगा, लेकिन ये मेल के लिए होगा सिर्फ। सेम सिर्फ तस्निया में आएगा, चाहे हाजिर हो या गायब हो। और लास्ट आ गया हुन्ना, तो ये भी सेम, आगे वाला भी सेम है हुन्ना, वो सब, लेकिन ये मोनस के लिए आएगा, जमा मोनस गायब, और इंग्लिश में इसे भी दे लिखेंगे और से मुराद फीमेल होगा। तो ये हमारे 14 प्रोनाउंस कंप्लीट हो चुके हैं, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो आगे कुछ एग्जांपल्स, चंद एक एग्जांपल लिए हमने किस तरह से ये अल्फाज जो प्रोनाउंस हैं वो जुमलों में इस्तेमाल होते हैं, वो देखते हैं हम। बाज मिसाल यानी कुछ मिसाल, कुछ मसाले। पहली है अना, अना मीन्स हम पढ़ चुके हैं, अना मीन्स मैं। अना अज़हबु इलल बैती, ज़हबा का मतलब होता है जाना, मैं जा रहा हूँ घर की तरफ, यानी मैं घर जा रहा हूँ। अना अज़हबु इलल बैती, आई गो टू होम या आई गो टू हाउस। अना अज़हबु इलल बैती, मैं घर जा रहा हूँ। तो इस जुमले में अना इस तरह से इस्तेमाल हुआ शुरू में। दूसरा जो अना के साथ हमने लिखा था या, वो किसी जो पीछे किसी वर्ड के साथ मिला हुआ होता है, तो वो कैसे, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है हाजा किताबी। अब वर्ड है किताब, लेकिन अगर ये बताना है किसकी किताब तो हमने आगे या लिखा दिया, यानी मेरी खुद की किताब। हाजा ये किताबी, मेरी किताब है, तो ये इस तरह से इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है मेरी या मेरा। अब किताब है तो किताब मेरी, हाजा किताबी, ये मेरी किताब है। इसी एग्जांपल नहनु नक्तुबु, कतबा का मतलब होता है लिखना, और नक्तुबु हम लिखते हैं, और नहनु का मतलब होता है, नहनु मीन्स हम, तो नहनु नक्तुबु हम लिख रहे हैं। इसी में बोला हाजा हातिफुना, हातिफ बोलते हैं मोबाइल को, हातिफ मीन्स मोबाइल। और आगे कौन सा प्रोनाउन जुड़ा हुआ है, नून अलिफ ज़बर ना, यानी हमारा। जैसे हमने पढ़ा था पहले कि नहनु के साथ क्या होता है, ना, नहनु मीन्स हम, तो ना मीन्स हमारा, ना मीन्स हमारा। तो ये आ गया ना, हातिफु ना हमारा मोबाइल, हाजा ये हातिफु मोबाइल, ना हमारा, हाजा हातिफु ना ये हमारा मोबाइल है, ये हमारा मोबाइल है। पांचवी एग्जांपल है कैदी कुन्ना अजीम। कैदी बोलते हैं चाल को, चाल चलना, और कुन्ना मीन्स जैसे अंतुन्ना वो सब औरतें, और कुन्ना मीन्स क्या होगा, उन सब औरतों, जैसे हम ऊपर पढ़ चुके हैं अंतुन्ना तुम सब, ये हाजिर के लिए आता है, अंतुन्ना तुम सब। और दूसरा कौन सा आएगा, कुन्ना, तो वही कुन्ना यहाँ पे इस्तेमाल है, तुम सब का। कैदी कुन्ना, तुम सब की चाल अजीम बहुत बड़ी है, तुम औरतों की चाल बहुत बड़ी है। ये सूरह यूसुफ में ये अल्फाज इस्तेमाल हुए, कैदी कुन्ना अजीम, तो वहां से मैंने लिखे कैदी कुन्ना अजीम, ये सूरह यूसुफ में अल्फाज आते हैं।
تو اس طرح سے یہ الفاظ استعمال، پروناؤن جو ہے اس طرح سے جملوں میں استعمال ہوتے ہیں. تو یہ ہماری پہلی ویڈیو ہے جس میں ہم نے کچھ عربک کی بیسک گرامر یعنی پروناؤن کے بارے میں جانا ہے. تو پہلی ہماری کچھ ویڈیو اسی پر عربک گرامر پر ہوں گی، کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہم پڑھیں گے. تو اس کے بعد پھر ہم قرآن کی 1 by 1 ووکیبلری، ورڈ بائی ورڈ ووکیبلری شروع کریں گے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.